Hello everyone. Today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Government Budget. Now this chapter is in macroeconomics and this chapter carries around 8 marks of weightage. So today in this chapter basically there are 4 things which we are talking about in this chapter. 1. What is the definition of government budget? Components of government budget में deficits and objectives of government budget. 4 things we have to talk about in this chapter. So let's start with the chapter without wasting any time. What is government budget? Now government budget is nothing but is defined as an estimated or planned receipts and expenditure of the government for the next financial year. अगले साल गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए. इसको जब हम एक जगह पे लिखते हैं एस्टिमेशन, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, जो हमारा 1 फरवरी को हर साल आता है. Now this is what is government budget. Now let us see government budget के अंदर उसके components क्या क्या होते हैं. Second topic which we are starting is components. Talking about the components of government budget, so we have there are 2 things in government budget. One is the receipts and the other is the expenditure. कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पे पैसा जाने की हमें expectations हैं. So receipts is the inflow of money and expenditure is the outflow of money. Now when we bifurcate these two further, in receipts we have revenue receipts and capital receipts. Okay, now first let us talk about the revenue receipts and capital receipts. Receipts मतलब पैसा हमारे पास आया है. Revenue receipts are those receipts which will neither reduce an asset nor create a liability. ऐसा पैसा जो हमारे पास आ रहा है लेकिन उससे ना ही हमारा कोई एसेट कम हो रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. बट ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं ये रेगुलर होती हैं नेचर में. जैसे कि हमारा टैक्स आता है, हर साल आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स तो हर साल आएगा ही आएगा, तो ये रेगुलर होते हैं, रेकरिंग होते हैं. Whereas कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रेकरिंग इन नेचर. सेकेंडली दे आर द वन विच विल आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट. जब हम ये बोलते हैं रिड्यूस एन एसेट, पैसा कब आएगा हमारे पास? अगर मैं कोई एसेट बेच दूँगी, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक फ़ोन है, अगर मैंने ये फ़ोन बेच दिया तो पैसा आएगा, तो वो रिसीट है. लेकिन जब ये फ़ोन बेचा तो ये एसेट ख़त्म हो गया, मेरे पास कम हो गया, तो ये एसेट को रिड्यूस कर दिया, तो ये कैपिटल रिसीट है. लेकिन अगर मुझे सपोज़ वैसे ही मेरे भाई ने पैसे दे दिए तो रिसीट तो है, लेकिन ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ है, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, भाई ने ऐसे ही दी हैं, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट है. ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसी चीज़ें होती हैं. वन इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स एंड अदर इज़ कॉल्ड capital receipts. We will move on to expenditure side in the next video. First of all, let us just talk about the receipts. Now coming about the revenue receipts, for such revenue receipts are the ones which are neither create a liability nor reduce any asset. There are 2 types of revenue receipts. One is called tax receipts, the other is called non-tax receipts. Now coming to tax receipts. Tax receipts are a compulsory contribution to the revenues of the government. गवर्नमेंट इसके लिए हम सबके ऊपर एक कंपल्सरी चार्ज लगाती है जो सबको देना है. दैट इज़ कॉल्ड अ टैक्स रिसीट्स. वेल नॉन टैक्स रिसीट्स आर रेकरिंग इन नेचर बट दे कम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैन टैक्स, कोई और चीज़ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स रिसीट्स फर्स्ट. टैक्स रिसीट्स में 2 आते हैं. वन वी हैव अ डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वी हैव इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. Now coming to direct and indirect tax, if you see a direct tax is the one which is levied on the income of the consumer. Now income of the consumer मतलब जो कंज्यूमर का सैलरी वो कमा रहा है, चाहे सैलरी है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे रेंट है, चाहे इंटरेस्ट है, वो जो भी कमा रहा है उसके ऊपर जो लगता है टैक्स, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. वेयर एज वो टैक्स जो कि हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन पैटर्न पे लगता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल है ना, हमने बात कर ली इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे लगा है, उसको मैंने बोल दिया डायरेक्ट टैक्स. वेयर एज सपोज एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करते हैं. एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? कोई बंदा मूवी देखने गया तो उस मूवी पे टैक्स लगा. अब हो सकता है मूवी देखने आप गए, मैं नहीं गई, तो मेरे पे टैक्स नहीं लगेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो खाली आपके ऊपर लगा कि आप मूवी देखने गए. ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, हमने कोई सामान खरीदा उस पर टैक्स लगा. जीएसटी हो गया. अब जीएसटी की बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है. जीएसटी ऑन वीट की बात करते हैं. अगर आप गेहूँ पे, वीट पे जीएसटी की बात करो, अनपैक्ड गुड है, जब अनपैक्ड वीट है जो आपको राशन की दुकानों पे मिलता है, लूज़ वीट मिलता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता. लेकिन अगर हम बात करते हैं पैक्ड वीट की, जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, पिल्सबरी हो गया, रामदेव जी वाला हो गया, ये सब पैक्ड है, इनके ऊपर जीएसटी लगता है.
तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो पैक ले रहा है कि अनपैक्ड। अगर वो अनपैक्ड लेगा तो जीएसटी नहीं देना, अगर पैक्ड लेगा तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर लगता है, और डायरेक्ट टैक्स होता है हमारे इनकम पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स जो है इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर टैक्स लगा उसको ही देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर सपोज गवर्नमेंट ने आशीर्वाद आटा वालों पे जीएसटी लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, वो अपने सामान का प्राइस बढ़ा देंगे, और प्राइस बढ़ा के टैक्स कौन पे कर रहा है, बेसिकली कंज्यूमर पे कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कमिंग बैक अगेन, वी वर टॉकिंग अबाउट द टैक्स रिसीट्स अंडर विच वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड द सेकंड वी हैव इज नॉन टैक्स रिसीट्स। इनके अंदर क्या कहते हैं, चलान, इन चीट्स। लेट अस सी व्हाट ऑल कम अंडर द नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कमिंग टू द नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स में आते हैं हमारे पास चलान, फाइन, प्रॉफिट्स, एनचीट्स एंड इंटरेस्ट रिसीट। ना चलान फाइन तो इजी है। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स वो होता है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसबीआई, पीएनबी, सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो प्रॉफिट कमाती हैं, ये सब प्रॉफिट क्या है, ये गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। एन चीज़ का मतलब होता है, कभी कभार ऐसा होता है पीपल लीव देयर वेल्थ मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो छोड़ देते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एन चीज़। इंटरेस्ट रिसीव, गवर्नमेंट ने कभी पहले किसी कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा नॉन टैक्स गवर्नमेंट रिसीट होता है। सो ये हो गया हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स। अभी इस वाली वीडियो में हमने बात करी है रेवेन्यू receipts के बारे में, ठीक है। Then coming to capital receipts. Capital receipts are the one which will either create a liability or reduce an asset. Now ये कौन सी receipts होती हैं, ये वो receipts हैं जैसे सेल ऑफ एसेट। अगर हमने कोई हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट ने बेचा है, कोई गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी बेचा है किसी को, तो वो एसेट है, वो एसेट हमने बेच दिया। जब वो एसेट हमने बेच दिया तो हमें उससे पैसा मिलेगा, वो क्या है, कैपिटल रिसीट है ना। इसके अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल ऑफ एसेट में, जो हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट कंपनीज में से कुछ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बेच देती है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के कुछ शेयर्स बेच दिए ना टू जनरल पब्लिक, 10% 20% शेयर्स बेच दिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करी है अपनी कंपनी। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कंपनी में थोड़ा सा पार्ट बेच दिया, से एसेट्स बेचे हो ना, तो पैसा तो आया गवर्नमेंट के पास, और डिसइन्वेस्टमेंट किया। इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं से गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट आई है। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने कभी पहले किसी को लोन दिया होगा, अब उसकी रिकवरी हो गई, वापस मिल गया लोन, वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया, तो इसमें क्या हुआ, हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। इसमें क्या हुआ, हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। इसमें क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस करनी पड़ती। तो ये हो गया कैपिटल रिसीट। और इन टुडेज वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट रिसीट्स में रेवेन्यू एंड कैपिटल। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर।